अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ وعلیکم بالله السلام۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شر نفسي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سورہ نمبر 8 آیا نمبر 26 ہوا تھا، لیکن ہم تھوڑا پیچھے سے لیں گے، 24 سے لے لیں گے۔ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ یحشرون۔ تھوڑا مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یحول یہ جو اللہ حائل ہو جاتا ہے بول کر ہے نا، اس کا مطلب میں کیا سمجھائی، تھوڑا مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے، اس واسطے میں پھر سے لے لے رہی ہوں۔ یقولو مطلب اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تعلیمات جاری ہیں، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں، بار بار بولنے پر بھی مانتے نہیں، تو اللہ کو بھی نہیں پسند ہے کہ یہ لوگ زبردستی ان کو لائیں، دین پر لائے، ان کو جنت کے مستحق بنائے، زبردستی کرے ان کے ساتھ، یہ کوئی اللہ کو پسندیدہ شے نہیں ہے، تو حائل ہو جاتا ہے، یعنی ان کے دل کے اور ان کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، یعنی یہ سننے نہیں پاتے، سمجھنے نہیں پاتے، ان کی سننے کی سمجھنے کی یہ جو صلاحیتیں دیا ہے اللہ، وہ اللہ سلب کر لیتا ہے قرآن کے لیے، قرآن سمجھ نہیں پاتے۔ یہ مجھے نہیں پتا میں کیا بتائی تھی لاسٹ ٹائم۔ سنیے، آئے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جس راستے پر بلا رہے ہیں اس کی طرف لپکو، اس میں تردد نہ دکھاؤ، اس میں سستی نہ دکھاؤ۔ رسول تمہیں اس راہ کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، تو اسے لبیک کہو، اور جان رکھو کہ اللہ اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اب یہ حائل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے، اس کا دل اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور انہیں سمجھ بوجھ کی قوت اس کی سلب ہو جاتی ہے۔ ویسا ہی ہوتا ہے نا، نمازیں چھوڑ دیے، 2 دن چھوڑ دیے، 3 دن چھوڑ دیے، اس کے بعد اس طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ اور کہا جاتا ہے جمعہ کی نماز اگر 1 دن چھوڑ دیے جماعت کے ساتھ، مردوں کے لیے ہے، جماعت کے ساتھ اگر چھوڑ دیے وہ نہیں گئے تو کیا ہوتا ہے، 1 ڈاٹ، اللہ 1 ڈاٹ کالا ڈاٹ ڈال دیتا ہے، کہاں، دل پر۔ دوسری جمعہ پھر لگاتار ہو گیا، پھر اور 1 ڈاٹ، تیسری جمعہ اور 1 ڈاٹ، ایسا بھی اگر چند مس ہو گئے تو پورا دل کی سیاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ تو نیکیوں کی طرف لپکنا، جہاں بھی موقع مل جاتا ہے، جہاں بھی گنجائش رہتی ہے، جیسے بھی تن من دھن دامے درمے سکھنے، جیسے بھی ہمیں نیکیوں کی ہمیں مواقع مل جاتی ہیں تو اس کی طرف لپکنا۔ موقع ہمیشہ نہیں آتے، انگلش بھی کہتا ہے، انگلش میں بھی یہی کہتا ہے، اپرچونٹی ناکس بٹ ونس، ہمیشہ نہیں آتی، بار بار نہیں آتی۔ جب اللہ اپنے راستے کھولتا ہے، موقع دے رہا ہے تو لپک کے لے لینا، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، پھر اسے وہ موقع نہیں ملتا۔ پھر نیکسٹ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کیا مطلب بتائے ہم لاسٹ ٹائم کیا ذکر کرے لاسٹ کلاس میں؟ بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے۔
जो गुनाह करती उन पर ही अजाब आता है, उनको ही तकलीफा आती, उनको ही मुश्किलात में मुब्तला करता है। ये नहीं है, ऐसा रूल नहीं है अल्लाह का। सब उसमें मुब्तला किए जाते हैं, सब आ जाती उसमें, उसके जैर उसके पर्व में अल्लाह के अजाब के सब आ जाती। क्यों आ जाती? इस्लाह और नहीं क्या करना, जी, उनकी भी इस्लाह करना, जब उनके साथ हाँ, रहते हैं तो चिंता करना है, दूसरों को इस्लाह करना। बताना है। सिर्फ हाँ, हम अपनी जगह बैठ कर एक रूम में बैठ गए, एक तन्हा एक कोने में बैठ गए, ना अपने घर की फिक्र, ना पास पड़ोस की फिक्र, ना अपने कबीले की फिक्र, ना ऑन द लार्जर सेंस में उम्मत की फिक्र, सबकी फिक्र करना है, सबको राह रास्त पर लाना है। वो जो वाकया हमें मालूम है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अजाब लाने का हुक्म हुआ, तो उन्होंने आकर देखे यहाँ एक आदमी है जो पलक झपकने के उतनी देर में भी मासियत का शिकार नहीं हो रहा है, कोई गुनाह उससे सरजद नहीं हो रहा है, अल्लाह की याद में है, जिक्र में है, इबादत में है। तो अल्लाह को वापस जाकर बोलती कि ऐसा एक बंदा यहाँ है अल्लाह, क्या उसके ऊपर भी अजाब लाना? क्या उन्हें इतनी इतना इबादत गुजार है? तो अल्लाह बोलता है पहले उस पर शुरू करो, उसी से शुरू करो। क्यों शुरू करो? उसकी गीरत, उसकी हमीयत कैसा बर्दाश्त कर रही है कि अल्लाह के वो तालीमात पामाल हो रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत पामाल हो रही है, लोग कुफ्र का, शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं, और ये आराम से बैठा हुआ अपनी खानकाह में अपनी जगह पर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। क्या फायदा ऐसा? वो किसी की इस्लाह नहीं करता, और अल्लाह की हमीयत नहीं है, उसको गीरत नहीं है। उसकी अना कैसा बर्दाश्त कर सकती है, उसकी ईगो कैसा बर्दाश्त कर सकती है कि अल्लाह के साथ अल्लाह और माबूदों को शरीक किया जा रहा है, अल्लाह के इसका वहदानियत का कुफ्र हो रहा है, इनकार किया जा रहा है, फिर भी ये अपनी हद तक इबादत में मशगूल है। तो ये अल्लाह को नापसंदीदा है। अल्लाह चाहता है कि सबकी इस्लाह हो, दीन की इस्लाह हो। एक वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, जो फजर की नमाज के बाद दो शख्स का एक सहाबी बयान करते हैं, देखिए या रसूल अल्लाह, ये शख्स है ना, ये दोनों में से एक शख्स क्या करेगा, चले गया, फजर पढ़ के चला गया और जाकर ये दर्स व तदरीस के काम में मशगूल हो गया है। और दूसरा शख्स, देखिए ये शख्स अपनी हद तक का जिक्र में, अस्कार में, इशराक तक भी बैठा हुआ है या उसके बाद भी बैठा हुआ है। कौन बेहतर है इसमें? क्या कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन बेहतर है? दुनिया में तो जो जो लगा जा है जो जो निकला चला जो वहां हाँ, से। बढ़ाने के लिए, अल्लाह का हाँ, दीन की इशाअत के लिए, दीन फैलाने के लिए, कलाम अल्लाह सबको, सबके समझ बूझ हाँ, लाने के लिए चला गया, वो बेहतर है। ये अपनी बेहतर हद तक का जो भी कर लेती ना, करना तो है। अब अपनी हद तक शराब नहीं पिए, जुआ नहीं खेले, सूद नहीं लिए, कोई गलत काम नहीं करे, सब अच्छा ही काम करे, लेकिन फिर भी उनको भी अजाब में ले रहा है अल्लाह, यहाँ बताया जा रहा है। सिर्फ गेहूं नहीं, घन भी पिस जाता है उसके साथ। यानी जो मुर्तकिब हैं वही नहीं, बल्कि जो देख रहे हैं। अब इसमें दो कैटेगरीज बताए जा रहे हैं। अब इसमें क्या है बोले तो तकी उस्मानी की तशरीह मुझे पसंद आई। हाँ, अगर हाँ, मुझे में अगर कुव्वत है कि मैं किसी को रोकूं, बुराई से रोकूं, कोई बुराई कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है, खानका को जा रहा है, मकबरे को जा रहा है, कब्रस्तानों को जा रहा है, कहीं जा रहा है, अगर मैं उसको रोक सकती हूँ, मेरे में वो कैपेसिटी है, मेरी बात से कहूँ, पहला दर्जा क्या है रोकने का? हाथ पकड़ के रोकना। हाथ पकड़, तीन दर्जे हैं। एक तो हाथ पकड़ के रोकना, अपनी ताकत से रोकना, और दूसरा क्या है? जबान से रोकना, जबानी कलामी रोकना। तीसरा दर्जा क्या है? जो दिल बहुत से लाभ, बुरा मानना, हाँ, दिल से बुरा मानना। दिल में कम से कम बुरा जानना, ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये बुरा जानना, तो ये रोकना। अब क्या करना है, मैं अगर मेरी कैपेसिटी है तो मैं जरूर बोलना, ये नहीं समझना कि उन्होंने क्या समझेंगे, क्या बुरा मान जाएंगे, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, समदवा है या कुछ है या कुछ है। अल्लाह नाराज होना वो हमें ज्यादा मकसूद होना चाहिए, या दुनिया की नाराजगी? अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह, की होना अल्लाह चाहिए, नाराजगी ना अल्लाह की होना रजा, चाहिए। अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की हाँ, खुशनुदी, उसकी खातिर अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम रोक सकते हो, ताकत से रोक सकते हो, उनको हाथ पकड़ कर रोक सकते हो, या कम से कम जबान से कहते हो, और तुम
तुम अगर थोड़ा भी शायबा तुम्हें हो, ये उनकी तशरीह मुझे बहुत पसंद आई, मैं उसी नहज पर मैं आपको तफसीलन बता रही हूँ। अगर मुझे शायबा भी हो, थोड़ा गुमान भी हो, 1% भी के, मेरी बात उन पर कारीगर हो जाएगी, असरअंदाज हो जाएगी, वो आ जाएंगे राह रास्त पर। थोड़ा भी अगर मुझे गुमान भी हो तो मुझे चाहिए कि उनका जाकर उनका हाथ पकड़कर मैं रोकूं, और वो नहीं हो सका तो जबानी कलामी तो रोकूं। इतना तो कोशिश करना, वो लास्ट का दर्जा नहीं, ये 2 कोशिशें करना है। और ये क्या हुआ, बुराई से रोकने का हुआ। अब अमर बिल मारूफ भी है। अमर बिल मारूफ क्या, भलाई की तरकीब देना। कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरे सामने हो रहा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, दुनिया में मशगूल हो रहा है, मैं समझती हूँ कि अगर मैं उसको नमाज की तरगीब दूं, उसको उसके फायदे बताऊं, अल्लाह की तरफ उसकी रग़बत मुतवज्जा करूं, तो शायद वो मेरी बात मान ले। मुझे अगर गुमान भी है इस बात का, तो चाहिए कि मैं अमर बिल मारूफ को जरूर करूं, उसे जाकर उसका हाथ पकड़ कर लाऊं, उसे देख भाई ये है नमाज, ऐसी है नमाज, बहुत जरूरी है, ये इमाद है, ये पहला सुतून है, ये इसी की पूछोगी, पहले नमाज की पूछोगी, खबर में पहले नमाज की, इसके जो महासिन है वो तो बताए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और जरूरी है, 5 वक्त नमाजी होना जरूरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल कुछ नहीं है। फिर भी इसके वो चूंकि उसका ये नहीं है, उसका आदी नहीं है, तो उसे आदी करने के लिए क्या करना, पहले इसके महासिन बताना, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, अपने ही बताओ, वो भी सही है कि ये बैठे बैठे ये जो वक्त गुजारते हैं, ये जो है कान की एक्सरसाइज, दिमाग की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, पाँव की एक्सरसाइज, दिमागी एक्सरसाइज, सजदे में पहले अपने ही जिस्मानी मुहासिन बताओ, फिर बताना कि उसे जरूरी है, पहली पूछ नमाज की होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल भी बताएं कि जिसकी नमाज सही हो गई, क्या हो गया उसका, अल्लाह राजी हो बेड़ा गया। पार, बेड़ा पार लग गया। यही बेड़ा वर्ड है, पार। अहादीस के यही वर्ड्स हैं। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। बेड़ा पार लगना बोले तो क्या, जहाज रास्ते में नहीं रह जाना, बीच में साहिल को जाकर लंगर अंदाज हो जाना, हाँ यानी वो पहुंच जाना सलामती के साथ, तो क्या हुआ, जन्नत में पहुंच जाता है उन्हें। नहीं, ये जो वर्डिंग्स है ना, थोड़े मुहाविरतन जो यूज होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा कन्वे कर जाता है। उसका बेड़ा पार लग गया, अहादीस की है वर्डिंग्स है कि जिसकी नमाज सही हो गई उसका बेड़ा पार लग गया, यानी पहुंच गया वो। अब दूसरे छोटे मोटे जो भी हैं वो अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह बोलता है कि इज्तनिबुत कबाइरा, अगर तुम इज्तनाब कर लो कबाइर से, तो छोटे छोटे जो भी होते हैं वो मैं बख्श दूंगा, अपने फजलो करम से बख्श दूंगा। ये जो बात थी ये बताने की थी खास। और बचो इस फितने से जिसकी शामत मखसूस करने वालों पर ही नहीं, सबके ऊपर आ जाती है। अब हमारे पास है, हमारा माहौल ऐसा ही है, नहीं हमारे अतराफ फैला हुआ है, हमारे कबीले में है, हमारी फैमिली में है, हमारे अतराफ है, हर जगह है, हमारे पास पड़ोस में है, हमारे मोहल्ले में ही, हमारे सिटी में ही। अब दूर दूर तक हम नहीं जा सके तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी हद तक हतल मकदूर जो तुम्हारे से हो सकता है वो जरूर कर गुजरना, वरना इसी जमरे में आ जाती। किस जमरे में आ जाती, वो जो था ना खानखा में बैठा हुआ, पहले उसके ऊपर अजाब लाओगर को बोले ना अल्लाह, उस जमरे में आ जाती। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमें भी, हमारा अपना पार्ट जरूर अदा करना। वो चिड़िया की मिसाल, पूरे समंदर की चिड़िया आग को बुझा नहीं सकती भाई, थोड़ा मेरे हाथ से जो हो रहा है वो, क्योंकि अल्लाह पूछा तो जवाबदही के लिए, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुम्हारी जानने की कैपेसिटी थी, बोलने की कैपेसिटी थी, करने की कैपेसिटी थी, पैसा था तुम्हारे पास, सब कुछ था तुम्हारे पास, क्या किया तुमने। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सारी नेमतें जो तुम्हें दी गई थी कैसा बरोई कर लाई, कैसा उसकी यूटिलिटी कैसा किया तुमने। इस सवाल का जवाब देने के लिए तो सारी जिंदगी हम इसी में खपाना पड़ता है। अल्लाह के इस हुक्म की तामील में लगता है कि हम जवाबदेह हैं। इस आयत के तहत हम बहुत हद तक जवाबदेह हैं। पैसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमें एक्टिव होना, सबकी हद तक का जितना हो सकता है उतना तो हम जरूर कर गुजरना है। ये 2 मुझे कल वो
थोड़ा देख रही थी तो पता चला कि ये शायद पूरी तरह से खुलकर बयान नहीं हुआ है ये मौजू। अब तो समझ में आ गया नहीं हमें हमारे तय कितनी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ समझ लगाइए में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्कुरु इज़ अंतुम खलीलुम मुस्तदफून फिल अर्दी तकाफूना अन यतफत्तकुमुन नास। वस्कुरु याद करो वो वक्त, वस्कुरु जब आता है याद करो वो वक्त, वो सिचुएशन, वो जमाना, वो वक्त जबकि इज़ अंतुम खलीलुन बहुत खलील थे, थोड़ी तादाद में थे, मुस्तदफूना इसका मीम सिंता निकाल दीजिए, वो नून जमा का ये सीगा निकाल दीजिए तो क्या बचा, द्वाद आइन फा ज़अफ कमजोरी, तुम कमजोर थे, बहुत कम तादाद में थे तुम, फिल अर्द तुम्हारी ही जमीन में तुम कमजोर थे। मक्के में जो लोग रह रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ ही कितनी तकलीफ दिए, क्या क्या मुश्किलात का सामना पड़ा अपनी ही जमीन में, अपनी ही जमीन थी वो, अपनी ही मदरलैंड थी वो, अपना ही पैदा हुआ जगह थी वो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को कितनी तकलीफ दी गई और वहां से निकाल कर कहाँ पहुंचाया गया, बाइकआउट किया गया, बाइकआउट एक तरह से जिला वतन किया गया, एक्साइल किया गया। कहाँ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 साल गुजारे तब हाँ आपकी जोजा मुहतरमा भी थी खदीजतुल कुबरा, हाँ शेबा शैब शेबा अबू तालिब, हाँ अबू अबी तालिब। तालिब बोल को, घाटियां पहाड़ियां, तो वहां से रास्ता गुजरता था, तिजारती काफिले उधर उधर से गुजरते थे, लेकिन इन लोगों को कोई चीज वो लोग बेचने से मना कर दिया था। पहले अबू लहब वहां चला जाता और 5 गुना ज्यादा कीमत की पुकार लगा देता, इनको बेचने नहीं देता था। बच्चों के वास्ते बाप बिल बिलाते हुए बच्चों के वास्ते जाता कोई चीज खाने पीने की लाने के लिए, तो ऐसा मामला होता उनके साथ कि कोई बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको मना कर दिया गया था। वहां से काफिले गुजरते थे लेकिन ये लोग जाकर खरीद नहीं सकते थे, पैसा देकर भी खरीद नहीं सकते थे, ज्यादा देकर भी खरीद नहीं सकते थे, ऐसा बाइकआउट कर दिया गया था। तो क्या खा रहे थे ये लोग, खाना तो है ना जरूरी जान बचाने के लिए। क्या भी नहीं क्या, ग्रास वगैरह ऐसा सुनी है। हाँ जड़ी बूटियां वहां की, और हाँ चमड़े वगैरह, चमड़े के टुकड़े हाँ वो गला कर खाते थे। तो ऐसी नौबत आ गई थी, खदीजतुल कुबरा के मुताल्लिक कहा जाता है कि उनकी इजाबत होती थी तो जैसा ये बकरी की मेंगनियां होती उस तरीके की। अब क्या है, पेट को नहीं है तो कुछ वो डाइजेशन के वास्ते कुछ है ही नहीं, तो फुजला क्या निकलेगा। तो इसी में उनका बाद में यहाँ आकर अबू तालिब भी साथ थे, चचा भी साथ थे, हालांकि उनको जरूरी नहीं था, वो तो सरदार थे, उनको जाने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए वो हुक्म नहीं था जिलावतनी का या बाइकआउट का, वो हुक्म नहीं था, लेकिन सपोर्ट के लिए गए थे। इसी वास्ते उनका मुकाम ज्यादा है और उन्हें अल्लाह उनके अजाब में तखफीफ कर देगा, उन्हें जूतियां पहनाई जाएंगी आग की, ये बताया गया है अहादीस में। तो बाद में वापस आने के बाद दोनों का भी इंतकाल हुआ, अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और इनका भी, और वो वापस ही मुतफा हुई। वो जो एग्रीमेंट हुआ था, वो जो चार्टर था वो मक्के में लगाया गया था, उसको अल्लाह के हुक्म से दीमक चढ़ गई थी। अब वो दूसरा जेरोक्स कॉपी वगैरह मसौदा तो कुछ भी नहीं होता था, तो वो खत्म ही हो गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, वापस आने के बाद ये इसका ये हुआ, ये दारुन नदवा में एक फैसला हो गया। अब क्या करें इनको, क्या करें तो भी खत्म नहीं हो रहा है ना, ये मैनेज खत्म नहीं हो रहा है, ये इनका मिशन चलता ही जा रहा है। वापस आ गए तो भी यही, फिर बैठे पार्लियामेंट हाउस, दारुन नदवा कहा जाता है, नजवा भी आता है, दो भी वर्ड्स हैं, पार्लियामेंट हाउस उनका। उसमें बैठकर सारे ये लीडरान ये करती, प्लान करती, क्या करना, कॉन्स्पिरेसीज चल रही, मंसूबा चल रहा है, क्या करना। 3 चीजें, 3 ग्रोह, 3 चीजें बोलते हैं। एक बोलता है कि जिला वतन कर दो, इनको भगा दो, यहाँ से भगा दो, कहीं भी जाए हमें क्या गर्ज, कहीं भी जाए क्या भी करे। दूसरा नहीं मानता, दूसरे 2 ग्रोह इससे नहीं मानते, क्या बोलते हैं, कहीं भी जाए फिर यही मैनेज फैलाए, फिर ये यहाँ तक भी आ जाएगा, फिर वही मुसीबत हो जाएगी, नहीं है ठीक, नहीं है काबिल कबूल, नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। फिर दूसरा बोलता है उसको कैद कर दो, जकड़ जकड़ बंदी में, उसको पाँव में बेड़ियां डालकर कैद कर दो, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होता। नहीं आ जाती, उनके पैरोकार जो है उनके साथियां आ जाती, उन्होंने उनको ले जाती।
फिर वही होता है, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरा कौन है? इन्हें अबू जहल एक लेकर आता है जो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो इम्प्लीमेंट करने के करीब रहते हैं, लेकिन अल्लाह आगे की आयत में आ रहा है, मैं उसको तफसीलन बयान करती हूँ। मकर मकर अल्लाह, ये अपना मकर कर रहे थे और अल्लाह अपना मकर कर रहा था। क्या मकर हो गया? रातें रात इनकी आंखों में धूल झोंक कर मुट्ठी भर रेत उड़ा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकल गए, पता भी नहीं चला। हजरत अली थे आपके बिस्तर पर। तो ये हुआ था। आगे आ रही है वो आयत भी आ रही है। वस्कुरु अंतुम खलीला मुस्तदफून फिल अर्दी, तुम बहुत ही ज़ईफ थे, कमजोर थे, तुम्हें दबा लिया गया था, तुम्हारी ही जगह पर तुम्हें दबा लिया गया था। अपनी जगह पर क्या बोलती मिसाल, कुत्ता भी शेर या गधा भी शेर मिसाल है नहीं, अपनी लेकिन गली में अपनी ही जगह पर, अपनी गली में, हाँ राइट योर, अपनी गली में गधा भी शेर हो जाता है। लेकिन यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ही जगह पर दबा लिया गया था, और आपके साथियों को भी बहुत ही परेशानियों में और मजालिम में मुब्तला कर दिया गया था। ये बताया जा रहा है कि तुम लोग कमजोर थे, अल्लाह अपने एहसानात गिना रहा है, तुम्हारे ऊपर क्या क्या एहसानात थे मेरे। जमीन में तुम कमजोर थे, तखाफूना, तुम डरते थे। ये कौन सा सीगा है? मुजारे का सीगा है, मुखातिब का सीगा। खाफा यखाफू, ये वाव नून छोड़ दीजिए। खाफा यखाफू, मुखातिब का सीगा आता है तखाफू, मुतकल्लिम का सीगा आता है अखाफू, मुतकल्लिम जमा का सीगा आता है नखाफू। ये तखाफूना, तुम डर रहे थे, यतखत्तफकुमुन्नास, के लोग तुम्हें उचक ना ले जाए। खत्तफा यतखत्तफू, लोग तुम्हें उचकने ले जाए, यानी लोग तुम्हारे साथ मजालिम तोड़कर तुम्हें मिटा ना दें, तुम्हारी हस्ती को, तुम्हारी शख्सियत को, तुम्हारे नामो निशान को सही मिटा ना दें लोग। तो अल्लाह ने क्या किया? फ़आवाकुम, तुम्हें ठिकाना दिया। आवा, ठिकाना देना, तुम्हें ठिकाना दिया अल्लाह ने, तुम्हारे पैर जमाए। वो अय्यदकुम बिनस्रिही, ही जमीर अल्लाह की तरफ है, जमीर शान। अय्यदकुम, तुम्हें तकवियत दी, तुम्हारे हाथों को तकवियत दी, बिनस्रिही, उसकी मदद से। नसर, नसीर, नासिर, मदद। नासिर इस्मुल फाइल है, नसीर भी इस्मुल फाइल है, मदद करने वाला। बेनसरी, अपनी मदद से अल्लाह ने तुम्हें तकवियत दी, तुम्हारे कदम जमाए रखे। वो रज़क़कुम मिनत तय्यबाति लअल्लकुम तशकुरून, और तुम्हें रिस्क दिया। वहां थे शुएब अबी तालिब में, कुछ नहीं मिल रहा था तुम्हें, बाद में यहाँ आ गए, यहाँ से हिजरत करना पड़ा। हिजरत करने के बाद मदीना तो फलता फूलता नेमतों का शहर है। क्या क्या है वहाँ के? अंगूर और खजूर तो बहुत ज्यादा इफरात में है, बहुत ज्यादा है। और दूसरे भी नेमतें हैं मदीने में, और बहुत सी नेमतें हैं। तो तुम्हें यहाँ से निकालना, यहाँ तकलीफ में थे, परेशानियों में थे, आपके ऊपर कातिलाना हमले का भी मंसूबा बन चुका था, यहाँ से निकालकर अमन की जगह ले गया तुम्हें। और वहाँ रिज़्क़ का बहुत ज्यादा बहुतात थी, मिनत तय्यबात, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, और तुम्हें तैयब रिज़्क़ दिया गया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। याद दिलाया जा रहा है वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको बेजोर कमजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दें, तुम्हारी शख्सियत को, तुम्हारी हस्ती को, तुम्हारे कल्चर को, तुम्हारे दिन को मिटा ना दें। तुम्हें हमेशा डर लगा हुआ रहता था, खच्चा रहता था। फिर अल्लाह ने तुमको जाए पना मुहैया की। आवा, जाए पना, रहने का ठिकाना मुहैया किया अल्लाह ने, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए, और तुम्हें अच्छा रिस्क पहुंचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आया नंबर 27। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूल व तखूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून। ये आइन ही भी आइन ही हमारे लिए है, ये सारे अब उम्मत के लिए, क्या हिजाज, क्या अरब, क्या दूसरे ममालिक कुफरस्तान में है, मुशरिकिस्तान में है, या इस्लामी ममालिक में है, सब इसी में डूबे हुए हैं। क्या अल्लाह कह रहा है? खियानत ना करो। तुम्हारा अब जो एहसानात बता दिया,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर, अब उसके साथ सारे मुसलमानों पर, आए ईमान लाने वालों, जानते बूझते अल्लाह और रसूल और उसके रसूल के साथ खियानत ना करो, दागा न को करो, धोखेबाजी न को करो, बेवफाई ना करो। खियानत बहुत से चीजों में खियानत, लफ्जी मतलब तो ये होता है कि आपके पास कोई चीज रखी गई है, अमानत। अमानत रखी गई है, और उसमें से आप बराबर उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं, कुछ उसमें से निकाल लिया गया या तब्दील कर दी गई या उसमें कुछ रद्दो-बदल कर दिया गया, कुछ भी उसके साथ खिलवाड़ किया गया, तो वो क्या है? खियानत है। अब यहाँ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की चंद अमानतें तुम्हारे पास हैं, कई अमानतें हैं, उसमें खियानत ना करो। क्या अमानतें हैं अल्लाह की? पहली अमानत तो ये है कि हम एक अहद करके आए हैं। कौन सा अहद करके आए हैं अल्लाह के पास? जब हम रूह थे, रूह के शक्ल में थे, चूंटियों की शक्ल में सारे अरवा को अल्लाह जमा किया और क्या वादा लिया? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हमने वादा किया है, वादा करके आए हैं, वो अमानत है, उसमें खियानत कर रहे हैं, हम नहीं उसको निभा रहे। और दूसरी क्या अमानत है? अल्लाह ने अपनी रूह हम में फूंका है। नहीं, इंसान की रूह कहाँ से आई है? जिस्म तो आया है जमीन से, रूह कहाँ से आई? आलम बाला की ऊपर शय है। आलम में बड़ा। कहाँ से आई है? अल्लाह की तरफ से आई है। खुली रूह। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, उलमा ने पूछा, यहूद के लोग और मुशरिकीन को इश्काल कर भेजते थे, पूछो उनको रूह क्या चीज है, जुल्करनैन कौन है, क्या है, ये सारा सब कुछ। अगर वो नबी है तो बताएंगे, नबी नहीं है तो उनको कुछ मालूम नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये झूठे हैं, फेक नबी हैं, क्या हकीकत में नबी हैं। तो वहां पूछा गया तो अल्लाह बताया कि कुली रूह इन दिल्ला, ये तो है अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की शय है, अल्लाह की तरफ से आई है। क्या है? यानी अल्लाह की तरफ से, रूह अल्लाह की है। खलीफतुल्लाह अलल अर्द, अल्लाह ने अपनी रूह इंसान में फूंक कर उसको खलीफा बना दिया जमीन पर, अपना खलीफा बनाया, यानी अपना जानशीन बनाया। तो अल्लाह का जानशीन है, इन्हें अल्लाह का डेप्यूटी है। तो यहाँ अल्लाह के जो तालीमात हैं, अल्लाह की जो वहदानियत है, अल्लाह जो जो भी जिंदगी का जो भी ज़ाबिता दिया है, उसको निभाने में, उसको कायम करने में, उसको फैलाने में और उस पर कारबंद रहने में हमारा सारी जद्दोजहद, हमारी सारी ये जो खुआ है, हमारी सलाहियतें हैं, इसको सर्व करना है। आए ईमान लाने वालों, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खियानत ना करो। और क्या है हमारे पास अल्लाह की अमानत? और क्या है? पैगंबर, कुरान। कुरान। पैगंबर आए, उनके कुरान। साथ कुरान नाजिल किया, पैगंबर तो चले गए, रिसालत का जो ये जिम्मेदारी है ना, ये अमानत है। जी। रिसालत की जिम्मेदारी, कुरान लोगों तक पहुंचाने की, अल्लाह के तालीमात लोगों तक पहुंचाने की, ये रिसालत की जिम्मेदारी है। रसूल को क्या जिम्मेदारी दी गई थी? कुरान के तालीमात पहुंचाना, अल्लाह के दिन का इस्तेहकाम करना, अल्लाह के दिन को मजबूत करना, मुस्तहकम करना, ये बाकी है, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। नबूवत हो गई लेकिन रिसालत बाकी है, और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये भी एक अमानत है जिसको हमें निभाना है। कुरान है जिसको, कुरान के कई हक है। क्या क्या हक है, हुकूक है कुरान के? कुरान को सही तरीके से पढ़ना, हाँ, सही जान तरीके से पढ़ना, आगे जानना, पहुंचाना, हाँ, समझना, समझ कर अमल पढ़ना, करना, अमल करना, समझना, अमल करना। हाँ, और दूसरों तक पहुंचाना पहुंचा। हमारी जिम्मेदारी है। अब पहुंचाना, मुशरिकों तक पहुंचाना, काफिरों तक पहुंचाना, जान के लाले पड़ जाती। तो तुम्हारा पैकर ऐसा होना चाहिए, पैकर इस्लाम ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारे से मामला करके समझ जाएं कि ये सही सचमुच हकीकतन इनका दीन कुछ ऐसा है कि ये ऐसे आला इक़दार का मालिक है, ऐसे आला इक़दार सिखाए जाते हैं इस दिन में। वो इसकी तरफ राग़िब हो जाना, उन्हें खुद मायल हो जाना। अब हमारे ये कैसे ही अहशिकनी है, मुनाफिकत है, बात वादा वफाई नहीं है, हाँ? अब इससे सभी भागती, हमारे से मुसलमाना बोले तो भाग जाती, दूर भाग जाती, कोई मामला करने से भी कतराती और
कोई ये निभाने से भी कतराती। अल्लाह कहता है कि ये अगर हो नहीं सकता कि जहाँ जाकर तुम हिंदुओं को भी गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की दावत दो, तो कम अज कम पैकर इस्लाम तो बन जाओ, पैकर कुरान तो बन जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पूछा गया, हुजूर की शख्सियत को बयान करो, तो क्या आप कहा? हजरत आयशा ने जवाब क्या दिया? पैकर कुरान है, वो चलता फिरता कुरान हाँ, है, मोबाइल चलता कुरान, फिरता कुरान। मोबाइल कुरान। उनको देखे तो मालूम हो जाता है इस्लाम क्या है, कुरान की तालीमात क्या है, क्योंकि वो अमल कर रहे हैं, पैकर हैं वो, पैकर। बोले तो वो मुजस्सम कुरान है, वो मुजस्सम कुरान है। अगर कुरान कोई पैकर बन जाए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कुरान को पैकर दिया जाए इंसान का तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजस्सम बोलते हैं, यानी सारा जिस्म, सारा अपना वजूद, अपनी शख्सियत जो भी है वो सारा पैकर है कुरान, कुरान के ही उस पर अमल करने वाले। तो ये सारी अमानतें हैं तुम्हारे पास, इसमें खियानत ना करो, बेवफाई ना करो, धोखा ना करो, दगा ना करो। कहा जा रहा है मुसलमानों से, ऐ ईमान लाने वालों, जानते बूझते इतने एहसानात हैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के, ये सब जानते बूझते तुम उसके और उसके रसूल के साथ खियानत ना करो। तुम्हारे पास बहुत सी अमानतें हैं, उसकी पासदारी करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है, उसमें तुम खियानत ना करो, और अमानतों में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो जाओ। गद्दारी, अपनी अमानतों से मुराद वो तमाम जिम्मेदारियां जो किसी पर ट्रस्ट करके किया जाता है। अब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, अमानत दी जाती है, ट्रस्ट करके देती नहीं। आप किसी के पास कहीं जाने के वक्त पैसा रख के गए, भाई मैं लाकर को जाने नहीं होता, तुम अपने पास रखो, तो ट्रस्ट करके रख रहे नहीं, उसके ऊपर भरोसा है कि उन्हें वापस करता है, वापस पूछे तो देता है, या उसकी हिफाजत करता है। तो ये ट्रस्ट करके जो तुम्हारे सुपर्द जिम्मेदारियां की गई हैं, हाँ वो अहदे वफा की जिम्मेदारियां हों या इज्तिमाई मुआहिदात की, यानी जो भी मुआहिदा हुआ है, अलस्तु बिरब्बी का हुआ है, या जो भी मुआहिदा है तुम्हारा, इस्लाम भी एक ये है जिस पर हमें तालीमात पर अमल पैरा होना है, या जमात के राजों की। अब ये राज की भी ये है नहीं, आप किसी से अल्लाह के अहद का हो गया जो बात हम कर चुके। अब दूसरे जो होती खयानत वो क्या है? कोई अमानत आपको पैसे की भी रख सकता है, चीजों की भी रख सकता है, या बातों की भी हो सकती है। आपके पास कोई बात कह दिया किसी ने, और उसने कहा कि ये बात मत फैलाना, किसी और को मत बताना, अनलेस एंड अनटिल उसकी खुद परमिशन हो जाए, तो ये भी क्या हुआ? अमानत। आप कोई बोलते हैं तुम किसी को नहीं बताना, तो ये क्या करती हो ना, दूसरों को फैलाती, ये तुम किसी को नहीं बताना, हाँ बोल के दूसरों तक फैलाती नहीं। अब ये भी बहुत बड़ी खियानत है, ये भी क्या है? गुनाह में आ जाता है। बात की भी अमानत हो सकती है, या इज्तिमाई मुआहिदात की, या जमात के राजों की। जमात के राज, जमाती राज, कोई अंजुमन है, कोई इदारा है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी कई ज़ाबिते होती, वो राज भी अगर जरूरी है तो उसको भी नहीं खोलना, किसी दूसरे पर आया नहीं करना। या शख्सी व जमाती अमवाल की, यानी माल की, या किसी ऐसे अहदो मनसब की जो किसी शख्स पर भरोसा करते हुए जमात उसके हवाले करे। कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी है, अब हमारे पास क्या होती, ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरीज होती हैं, या उसके प्रेसिडेंट रहती है, उन्हें क्या करती है, उन्हें खुद हड़प कर जाती नहीं वहां के माँ। कितने ऑर्गेनाइजेशन हमारे तबाह होकर हैं। अब आप वो इसको ही ले लीजिए, वो कौन है वो, हाजी इम्तियाज, हाँ हाजी इम्तियाज, कितने काम किया, बड़ा भोला आदमी लेकिन गुस्से गुस्से वाला आदमी, तो उसके साथ उसका माल उसी के ही इदारे वाले खाकर उसको तबाह करके चले गए। पहले तो कोई, वो गौसिया कॉलेज भी उसी ने खोली है, और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो शादी नहीं किया, ऐसे ही काम अच्छे अच्छे किया है, लेकिन उसी के आदमी, उसी के इदारे वाले उसे को धोखा देकर वहां के ये जो भी माल वगैरह जो भी है, वहां के पैसा वगैरह सब लूट कर उसको तबाह करके चले गए, वो ऑर्गेनाइजेशन भी उनका तबाह हो गया। तो ये जो है ये किस में आता है? अमानत।
अमानत अमानत ही उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके ज़ाबिते हैं, उसको निभाओ, उसके साथ खियानत ना करो। अल्लाह और रसूल के भी कई अमानतें हैं, उसको भी निभाओ। और सारे दूसरे जो तुम्हारी इज्तिमाई जिंदगी में, तुम्हारी माशरती जिंदगी में, समाजी जिंदगी में जो ये ज़वाबित आते हैं, इसको भी पूरा पूरा तुम्हें निभाना है। ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। कहाँ हुआ? या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूलहू व तख़ूनू, यहाँ भी ला ऐड करना है आपको, इससे पहले ला है वला तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून, जबकि तुम्हें सब कुछ मालूम है तो तुम खियानत ना करो, अल्लाह के साथ धोखा, बेवफाई, गद्दारी ना करो, खियानत ना करो उसकी अमानतों में। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बहुत बड़ी चीज, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा माँ, तुम्हारा घर, तुम्हारी कोठी, बंगले, तिजारत, ओहदे, जो कुछ भी है, जान लो तुम अन्नमा, महज यकीनन, अमवालुकुम, तुम्हारे माल, व औलादुकुम, तुम्हारी औलाद क्या है? फितना, फितनतुन, व अन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अजीम, इंदहू, हु के पास क्या है? हु के ऊपर मद आई है, जान लो और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में आजमाइश के सामान है, आजमाइश है। अपनी अमानतों से मुराद वो जो हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? इंसान के इखलास, ये जो होती हैं, जो चीज बिल उमूम खलल डालती है और जिसकी वजह से इंसान अक्सर मुनाफिकत, गद्दारी और खियानत में मुब्तला हो जाता है, वो अपने माली मफाद और अपनी औलाद के मफाद से उसकी हद से बड़ी हुई दिलचस्पी होती है। क्यों उन्हें खियानत करता है? माल और तुम्हारी औलाद काई को फितना बता रहे अल्लाह? हमारी सारी जद्दोजहद, हमारी सारी काविशें, हमारे सारे जो भी लियाकतें, सलाहियतें, कैपेसिटीज, जिस्मानी, जहनी, कल्बी, रूहानी, सारे हमें किस में लगा रही? या तो माल कमाने में लगा रही, या हमारे बच्चों को आला तालीम से नवाजना, उनको अच्छे अच्छे कोठियां, बंगले, ये सब बना कर रख देना कि पीढ़ी पीढ़ी खाते रहे। इसी में हमारी सारी कुव्वतें खप रही हैं, हमारी सारी सलाहियतें, सारी कुव्वतें बिलउमुम। कोई होंगे एक आध एक्सेप्शन भी होगा, उसे हर चीज का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द रूल, लेकिन बाई एंड लार्ज सबका यही हाल है, या तो पैसा कमाने में या हमारे बच्चों को आगे लाने में। किस में आगे लाती? दुनिया में आगे लाने में। वो कोई दुनिया कमाने में, दुनिया में खपाने में, खुद भी खप रही, बच्चों को भी खपा रही। नहीं समझ में आ रहा है कि ये गैर यकीनी दुनिया है, जाना जरूरी है, यकीनी तो मौत ही है, उसके बाद की जिंदगी वो इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। इसके वास्ते हम एक चीज अगर हमें लें और उसे अगर अखली तौर पर उसकी जांच पड़ताल करें, कोई हुदूद में है, हद है उसकी, और कोई बेहद की है, तो बेहद की जिंदगी के वास्ते कोशिश करना चाहिए कि ये हद में रहने वाली 60, 70, 80, 90, बहुत बोले तो 100 साल की जिंदगी के वास्ते बरसों का, सदियों का ये जो हम माल इकट्ठा करके जाती हैं, खुद के वास्ते जो सुहाने रूह हो जाता है, वबाले जान हो जाता है, बरज़खी जिंदगी भी आराम से गुजरती है कि नहीं की, इसके वास्ते जो हम खपा रही, ये सारी है खियानत है। जो भी करना है अल्लाह के दीन के वास्ते करना है, सारा हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिशें, हमारी कैपेसिटीज, अगर वॉरेटरी स्किल्स हैं, लिखने की हैं, जा जाकर बोलने की हैं, जिस्मानी हैं, ज़हनी हैं, जो भी हैं, माल दौलत है जिसे यूज करके तुम इस्लाम की इशाअत कर सकते हो, तो ये भी, ये सारा कुछ अल्लाह चाहता है कि तुम्हें दिया ही इसलिए है। क्या कहा अल्लाह ने? वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून। क्या मतलब इसका? वमा नाफिया है, और नहीं, खलक़तुल इंस, खलक़ तो मैंने पैदा किया, इंस व जिन्न, इंसान को और जिन को, इल्ला मगर, माँ आया तो फिर इल्ला आया तो क्या, मगर इसलिए पैदा किया गया है कि लियअबुदून,
ताकि वो इबादत करे, अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ये दुनिया में खपाने के वास्ते, दुनिया चमकाने के वास्ते, इसके वास्ते नहीं पैदा करे। अल्लाह कह रहा है जो जरूरी है उसके मुताल्लिक मैं 12 कह चुके हूँ कि मखदूर जो हमारा है, मुकद्दर जो है, वो अल्लाह जरूर दे देता है, वो कहीं नहीं जाता। एड़ी चोटी का जोर भी अगर आप लगा लो तो आपको जो मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ और अल्लाह देगा, बैठकर इंतजार करते रहो, इंतजार फर्दा के इसमें बैठ जाना, ये भी नहीं है। लेकिन सारी जदोजहद इसी के लिए करना, ये भी नापसंदीदा है अल्लाह के पास। तो तुम अमूमन ने ये रास्तबाजी से हट जाते हो और दुनिया के इम्तिहान गाह में ये तुम्हारी 2 चीजें हैं, तुम्हारे पाँव की बेड़ियां, 2 चीजें क्या? अमवाल हैं और बेटा बेटी, बेटा बेटी, औलाद औलाद, औलाद अमवाल, औलाद माल माल, तिजारत, कारोबार, घर, कोठी, बंगले। अब देखिए आज ज्यादा हो गया तो क्या होता है, उसी में खपे रहना पड़ता है। वो कहीं प्रॉब्लम आया उसको जाकर देखो, वो नहीं सेटल होता, उसके पीछे लगे, महीने उसमें गुजर गए, वीक्स इसमें गुजर गए, तिजारत में चले गए, कोई दिया धोखा दिया उसके पीछे लग गए। हर हमेशा लगा हुआ रहता खटका, कोई ना कोई खटका लगा हुआ रहता है और उसके पीछे सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये कहाँ बयान किया अल्लाह ने, अल्लाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाकुमुत तकासुर, कसरत माल की तलाश में इतना तुम चले गए, इंसान इतना चला जाता है कि हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, उसे कब फुर्सत मिलती है सर? खबर में गया तो खबर तका, आखिरी सांस तका अपनी सुध-बुध नहीं रहती, अपने खाने की सुध-बुध नहीं रहती, अपने चैन सुकून की सुध-बुध नहीं रहती। उतना कमाने के इसमें ऐसा पड़ जाता है, शैतान भी उसे खपाता है उसमें। कब उसे फुर्सत मिलती है? खबर में। खबर में वो क्या होता है अल्लाह को मालूम है। दुनिया में दुनिया परस्ती में रहा तो खबर का भी अजाब, फिर वहां भी चैन नहीं, वहां भी सुकून नहीं। लेकिन फुर्सत दुनिया से मिलती है सुखा, खबर तक का काम करते रहता है। नेक्स्ट आया, आया नंबर 29। ये सारा अल्लाह हमें इसलिए बता रहा है कि पहले से आगाह हो जाओ, दुनिया छोड़ना है। अब तुम्हें जन्नत चाहिए या दोज़ख चाहिए, फैसला तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ दिया है तुम्हें, अभी से तैयारी कर लो। दुनिया में खप कर गवा कर वहां आकर हाथ मलते ना रह जाओ। अब वक्त है, इम्तिहान है, बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो पूरा टाइम यूटिलाइज करो। इधर उधर देखते हुए, लोगों को कॉपी करते हुए, उनका इतना है, मैं इतना कमाना है, मुझे इतना मिलना है, इसमें खपाना मत तुम्हारी जिंदगी, वरना यहाँ आकर तुम हाथ मलते रह जाओगे, पछताओगे, खसारे में होगे, पूरा पूरा खसारा, दिवालिया उठा कर आओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरकानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु हुवल फज़लुल अज़ीम। आए ईमान वालों से खिताब है, अगर तुम खुदा परस्त हो जाओ, यानी तकवा परहेजगारी वाले, तकवा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी बहम पहुंचा देगा। कसौटी क्या चीज होती है? परखने का। कसौटी किसको कहते हैं? जो खरे और खोटे के इम्तियाज को नुमाया करती है। विच डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड, right खरे और खोटे, right and wrong राइट एंड रॉन्ग, एग्जैक्टली। तमीज, हलाल की हराम की तमीज, और तौहीद की और कुफ्र की, ये सारे जो मस्बत होती हैं, जो मनफी होती हैं, ऑपोजिट्स में जो आती, यही मफहूम फुरकान का भी है। फुरकान बोले तो क्या? फर्क करने वाला। ये कसौटी भी वही है, फर्क करने वाली है, हक और बातिल। ये एक वर्ड जो हक और बातिल आ जाता है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। हक, हकानियत, बातिल, इसको डिस्टिंक्ट करने वाली, इसकी तमीज करने वाली। इसीलिए हमने उसका तर्जुमा इस लफ्ज से किया है। इरशाद इलाही का मंशा ये है कि अगर तुम दुनिया में अल्लाह से डरते हुए काम करो तो तुम्हारी दिली ख्वाहिश ये हो कि तुमसे कोई ऐसी हरकत सरजद ना होने पाए जो रजा इलाही के खिलाफ हो। तकवा किसे बोलती? अल्लाह से डरकर काम करना। कोई भी काम
करने से पहले सोचना कि अल्लाह इससे खुश होता है क्या नाराज होता है, नाराज होता है तो रुक जाए, अगर खुश होता है तो उसको कर ले। तो ये सोचना। तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वो कुव्वत तमीज यानी कसौटी, वो कुव्वत तमीज पैदा कर देगा जिससे कदम कदम पर तुम्हें खुद ये मालूम होता रहेगा कि कौन सा रवैया सही है और कौन सा गलत है। हर काम करने से पहले हमें मालूम हो जाता है कि अल्लाह इससे खुश होता है या नहीं, किस रवैये में खुदा की रजामंदी है और किस में उसकी नाराजगी होती है। जिंदगी के हर मोड़, हर दौराहे में, हर ऊंच नीच में, जिंदगी में कई आती ऊंच नीच भी आती है, सिचुएशन कैसे भी आती, कभी गर्म कभी नरम, कभी खुशहाली कभी कम आएगी का ये होता है, पैसे कम हो जाती हैं तब वाविला मचाने बैठ जाती हैं, क्या हो गया, ये हमारे पास कितना था, कैसा था, क्या हो गया, ये अल्लाह का करम, अल्लाह नजर नहीं उठा रहा है। मैं बहुत सुनी हूँ ऐसा लोगों के पास से, अल्लाह देख रहा है नहीं, अल्लाह देख नजर नहीं कर रहा है, अल्लाह आंख खोल कर देख रहा है नहीं, ये ऐसी मोटी मोटी बातें जो करते हैं ये क्या है, ये अल्लाह के अगेंस्ट ये शिकवा है। तो अल्लाह कहता है कि जिंदगी को अनथैंकफुल, अनथैंकफुल हो, थैंकलेसनेस, अनग्रेटफुलनेस, अल्लाह के एहसान मंदी ही करना है, क्योंकि कुछ भी ना दे अल्लाह, ये जो तुम्हें सही सालिम रखा है वो भी अगर ना दे तो ये हिदायत की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है जो जन्नत में ले जाकर छोड़ेगी हमें। वरना क्या है, दुनिया कैसी ही अच्छी गुजार लो, अगर गए जहन्नम में तो फायदा क्या हुआ यहाँ का। ये तो छोटी सी जिंदगी है, कैसे भी गुजर जाएगी, ऐसे भी गुजर जाएगी, वैसे भी गुजर जाएगी, इसका कोई ये नहीं है। कितनी जिंदगी किसकी है वो भी पता नहीं है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, बहुत हो गया तो 100 है, उससे ज्यादा तो है नहीं। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जिंदगी के हर मोड़ में, हर दौराहे पर, हर ऊंच नीच में अगर कहीं ऊपर नीचे भी हो गया, कम पैसे भी हो गए या कम हालती में भी हो गए, कम आएगी में भी आ गए, परेशानियों में भी आ गए, तो तुम्हारी अंदरूनी बसीरत तुम्हें बताने लगे कि किधर कदम उठाना चाहिए। अंदरूनी बसीरत, हमारी दिल की आंखें हमें बताती हैं कि तकवा किस चीज का नाम है, अल्लाह से डरना, अल्लाह ही पर भरोसा करना, ईमान पर कायम रहना, ईमान नहीं डगमगाना, हमारा अल्लाह पर भरोसा नहीं डगमगाना, किसी भी सिचुएशन में, कम वट में, एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, उसमें इंसान ने लफ्जिश नहीं खाना, खत्म डगमगाना नहीं। अब इधर हलाल की तरफ रहे थोड़े दिन, उसके बाद कम पैसे हो गए फिर चले रुश्वत लेने चले गए, या कोई और तरीका जो अल्लाह को नापसंद है उसकी तरफ बढ़ गए। अब शैतान बहकाता रहता है, क्या ये मामूली नौकरी में, मामूली काम में ईमानदारी, ईमानदारी क्या कमाया तुमने। कभी कभी बीवियों को बहकाता है, बीवियां इनको बहकाती, बच्चे हमारे पाँव की बेड़ियां बन जाती। ये सारी चीजें जो इंसान को तकवा से दूर कर देती। तो क्या कहा जा रहा है, आई ईमान वालों, अगर तुम खुदा परस्त, खुदा का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी बहम पहुंचा देगा। क्या कसौटी? सच और झूठ की तमीज, हक और बातिल की तमीज, अच्छा और बुराई की तमीज तुम्हें मालूम हो जाएगी। तुम्हारा दिल तुम्हें गवाही देगा, तुम्हारा रास्ता तुम्हें साफ नजर आएगा, तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। कब चलोगे? क्या शर्त दे रहा है अल्लाह? अगर तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा ईमान, ईमान मुस्तहकम, अल्लाह का डर खौफ दिल में अगर ये है तो अल्लाह तुम्हें तमीज दे देगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये अल्लाह तुम्हें बता देगा, और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा। कौन सा वर्ड आया है? फुरखान, एक तो बता देगा, फुरखान यानी तमीज बता देगा, क्या सही है क्या गलत है वो तमीज बता देगा तुम्हें। और जो भी तुम्हारे से लफ्जिश ऐसे ही भूल चूक से हो जाती है वो युकफ्फिर, और वो दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयां, छोटी मोटी बुराइयां अल्लाह दूर कर देता है। ये जो कबायर होती ना उसके वास्ते तो दिली तौबा की जरूरत है। वो यगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, यकीनन अल्लाह फजल वाला, जू बोले तो वाला, फजल वाला है, और अजीम अजमत वाला, बहुत बड़ा फजल करने वाला है। आया नंबर नेक्स्ट।
30 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. यहाँ आ गया देखिए ये लोग जो मकर चला रहे हैं वइज, और याद करो जब वो यमकुरु वो मकर चलाते थे, बिका तुम्हारे साथ सिंगुलर का सिगा आया है, लेकिन हम वैसा नहीं बोलेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ऐ नबी ऐ मोहम्मद याद कर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ. अब हम कहेंगे वइज यमकुरु, जब वो मक्कर चला रहे थे, बिका आपके साथ, अल्लज़ीना कफरू जो कुफ्र कर रहे हैं. वो क्या कर रहे थे? खुफिया प्लानिंग कर रहे थे, मंसूबे बना रहे थे, साजिशें कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे. क्या करने के लिए? लियुस्बितूका, लियुस्बितूका तुम्हें कैद कर लें, कैद कर लेना, पाँव में जंजीरें डालना, जकड़ कर बिठा देना आपको, या तो आपको कैद कर लें, औ यख्तुलूका या आपको कत्ल कर दें, औ युखरिजूक या आपको जिला वतन कर दें, जमीन से निकाल बाहर कर दें आपको. ये फैसले ये इनो यमकुरु मकर कर रहे हैं. मकर मकर बोले तो जालसाजी, फरेब, फरेब से जो खुफिया तौर पर काम करते हैं उसको मकर कहते हैं. हम उर्दू में कैसा यूज करते हैं? मकरो फरेब, कंपोजिटली यूज करते हैं हमें मकरो फरेब. मकर जालसाजी जो काम करना, मकर चलाना, और फरेब फरेब के साथ धोखे से जो काम करने का सोचते ना वो मकर है. वो यमकुरुना वो मकर कर रहे हैं. वो यमकुरुल्लाह अल्लाह भी कर रहा है अपनी तदबीर है तुम्हें यहाँ से निकालने की, तुम्हारी सलामती की. अल्लाह रसूल को और उसके साथियों को ऐसे ही नहीं छोड़ देता, जाया नहीं करता. सारे रसूलों के साथ क्या हुआ? लूत अलैहिस्सलाम को उनकी बेटियों के साथ निकाल लिया गया और उन्हें बता दिया गया कि जहाँ से निकल जाओ, और जो आवाजें जो भी गुल शोर गुल होगा, जो अजाब आएगा उसको शोर गुल होगा उसकी पादाश में, उसके अंजाम कार्य एज ए रिजल्ट. लेकिन तुम पलट कर नहीं देखना, यहाँ से निकल जाना है, दूसरी बस्ती को चला जाना है. नूह अलैहिस्सलाम को निकाल लिया गया, आपके साथ 82 लोगों को निकाल लिया गया, उनको दूसरा जगह उनको दे दी गई. उसके बाद आता है अजाब. जब रसूल आ जाता है, हुज्जत तमाम हो जाती है, तो अल्लाह क्या करता है? इनके ऊपर अजाब लाने से पहले रसूल और उनके साथियों को सेफली कहीं सेफ जगह पर, महफूज जगह पर दे देता है. तो अल्लाह यहाँ अल्लाह भी मकर कर रहा है, आपको हिजरत कराना है, ऐन वक्त पर हिजरत करा दिया, जबकि जालसाजी हो गई उनका दारुल नदवा में, ये प्लान भी हो गया था, पहुंच भी गए थे लोग, जो मारना था वो लोग पहुंच भी गए थे. वो एक रात तय थी जिस वक्त मारना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जवान भी तय हो गए थे. जवान भी कैसे लिए इन्हों? जो तेज दस्त, दस्त बोले तो क्या? दस्त, दस के तो हाथ. हाथ, दस्तो बाजू बोलती नहीं, हाथ. तेज दस्त बोले तो जो तेज तलवार चला सकता है, तेजी से चला सकता है. तेज गाम बोले तो तेज चलने वाला, तेज दस्त बोले तो तेज हाथ चलाने वाला. हाँ, जो तेज हाथ चलाने वाला नौजवान होता था, वही से एक सारे कबाइल से एक एक नौजवान को सेलेक्ट कर लिया उन्होंने. क्यों सेलेक्ट लिए? ये अबू जहल का था सो प्लान, क्योंकि ये कबीले को नहीं आना. अब्द मुनाफ का कबीला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, उन्हें सारे कबीलों के साथ तो लड़ नहीं सकेगा ना. अब आखिर खून बहाले को खामोश बैठ जाते हैं इन्हों. अगर ये कबीला कोई रहा तो इन्हों लड़ती, अब्द मुनाफ लड़ती. सारे कबीले मिलना, सारे कबीलों से एक एक लड़का चुन लेना जो तेज दस्त है, उसे लेना. वो पहुंच भी गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को खड़ गए. जो वक्त तय था, दिन तय था, कौन आपको मरना वो भी तय था. ये क्या था? यमकुरुना, वो मकर कर रहे हैं. वो यमकुरुल्लाह, अल्लाह भी मकर कर रहा है, अल्लाह भी तदबीर चला रहा है. अल्लाह की तदबीर क्या? वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन. वो वक्त भी याद करो आए नबी, वो वक्त याद करने के काबिल है जबकि मुनकिरीन हक, ये जो कुफार थे, तुम्हारे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे कि तुम्हें कैद कर दें, या कत्ल कर डालें, या जिला वतन कर दें. कैद करने का ये 3 ग्रुप्स हो गए थे. इनमें कैद कर लेना, एक बोलिया, दूसरे एक्सेप्ट नहीं करे. जिला वतन कर देना, एक बोलिया, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करे. फिर और एक कोई तजवीज लेकर आया, कौन भी एक्सेप्ट नहीं करे. बाद में क्या हुआ? अबू जहल का जो प्लान था कि सारे कबीले से
یہ قبیلہ اس میں نہیں تھا نا، سارے قبیلے رہے تو کیا ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، کرائم ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اب ان کا یہ قبیلہ سارے قبیلوں سے کہاں لڑے گا، جا کر خون بہالے کو خاموش بیٹھ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ سارا جھنجھٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ طے ہونے کے بعد کیا ہوا، سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان جو بہت تیز بہت زبردست تھا، اس کو طے کر کے وہ سارے ایک ساتھ جانا. وقت بھی طے تھا، دن بھی طے تھا، رات طے تھی، ایک رات جانا تھا. اس وقت اللہ کیا کریا، ان کے مکر کو پانی میں ملا دیا، سب ان کے پانی پڑ گیا ان کے سارے منصوبوں پر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر دھول جھونکتے ہوئے ایک مٹھی ریت ان پر اچھال کر درمیان سے نکل گئے. یہ لوگ کھڑے تھے مارنے کے واسطے، تلواریں لے کر کھڑے تھے، درمیان سے نکلے، ان کے سامنے سے نکلے، نہیں معلوم ہوا، کوئی نہیں لے سکیا. گئے تھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، اس کے بعد وہاں سے جو معاملہ ہوا غار سور کو گئے، 3 دن وہاں رہے، اس کے بعد آگے چلے، یہ ساری داستان ہے اس کے بعد. تو یہاں کہہ رہا ہے اللہ کے حضور، اللہ کی سنت یہ ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیتا ہے اللہ، ان کو ضائع نہیں کرتا، ان کو سیف پہنچا دیتا ہے. ان کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. کس کس کے ساتھ ہوا، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور کون، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ صالح السلام، السلام. صالح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، السلام. سب پیغمبروں کو بچا لیا گیا. چند استثنائی کیفیات ہیں جہاں زکریا یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو سب قتل کر دیا انہوں نے. نبی قتل ہوتا ہے، رسول قتل نہیں ہوتا. نبی قتل ہو کے ہیں 2-4 نبیوں کے اسرائیلی دور میں، دوسرے ادوار میں نہیں، اسرائیلی دور میں. اسرائیلی بڑی ضدی قوم ہے، انہوں انبیاء کو قتل کر کے ہیں. انبیاء نبی کی جمع، نبی قتل ہوتا ہے، رسول قتل نہیں ہوتا. اب تک رسول ہسٹری میں، اسلامی ہسٹری میں قتل نہیں ہو کر ہے. تو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چال چل رہے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور ان کا مکر رہ گیا، ان کا مکر دھرے کا دھرا رہ گیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، آیا نمبر 31. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھائی، سن لیا ہم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کہتی، تم کتنا تم نے سنا دیا، بہت سن چکے ہم. وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کیا کہتی، قد سمعنا، ہاں ہم نے سن لیا، بس بس بہت سن لیا ہم نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آیتیں آپ تو سنا ہے، بہت سن لیا ہم نے، بس ہے. وہ نشاؤ، لو نشاؤ، اگر ہم چاہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ سنا رہی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، کوئی بات نہیں ہے. ہم بھی اس سے زیادہ سنا سکتی، ہم بھی اس سے زیادہ اچھا تصنیف کر سکتی، ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا. تم گھڑے ہوئے چیزیں لا رہے ہو نا. آگے کہہ رہا ہے، ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، حد سمینا، ہم نے سن لیا، یقیناً سن لیا، بہت سن لیا. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، ضرور ہم کہہ سکتے ہی، مثل ھذا، اسی طرح کے باتیں ہم بھی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر، سطر کی جمع، سطر یستر. اب یہ جو آپ کہانی لکھتے ہیں، کیسا لکھتے ہیں، ایک لائن لکھتے ہیں، پھر دوسری لائن لکھتے ہیں، پیراگراف بناتی ہیں، پھر دوسرا پیراگراف بنا، کیسا آپ لکھتے ہیں نا. اساطیر بولے تو قصے جو لائن بائی لائن لکھے جاتے. اولین، وہ پچھلوں کی کہانیاں، لوط علیہ السلام کی ہوئی، ہود علیہ السلام کی ہوئی، پچھلے کئی پیغمبروں کی، یہی آپ تھوڑا ادھر ادھر سے گھڑ کر لا کر ہمیں سنا رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے، ان ھذا نہیں ہے مگر یہ قصہ کہانی پچھلوں کی، ہم بھی سنا سکتی، اس سے زیادہ سنا سکتی، بہت اچھا سنا سکتی، بہت ہم سن چکے. اللہ ان کے خولے مخولے کو نقل کرائے کہ یہ کیا جواب دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا، کیا گزرتی ہوں گی، کیسے حالات تھے ہوں گے. یہ سب ہمارے رونگٹے کھڑا کر دینے والے. ہم اس سے سبق لینا، ہمارے پاس ایسے حالات تو نہیں ہیں.
ہم کر سکتے، ہمیں دین کا کام کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے دل گرفتہ حالت میں، دل شکستہ حالت میں، ایسے سنگین حالت میں کام کیا ہے نا، ہمارے پاس کیا قدر ہے دین کی، دین کی قدر، قرآن کی قدر، ہمارے پاس جو یہ تعلیمات آئے ہیں اس کو کیسا ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں، کیا ہے ہمارے پاس دین کی قدر، کیا ہے، کس طریقے سے، کن حالات میں، کیسے سچویشنز میں کیا کیا مظالم سہ کر رہے، کیسے کیسے دیگر کو حالات سے گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا ہے، اس کی قدر تو ہمیں کم از کم ہونی چاہیے۔ اللہ کرے جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، بہت سن لیا، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں اور ہم بھی اور بھی زیادہ گھڑ کر بنا کر پیش کر سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور کیا ہے ایکسٹرا کیا بیان کر رہے ہیں، ایسا کہہ کے اڑا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور لوگوں کو بھی یہ کر دیتے تھے، وہ بھی چھٹ جانا وہاں سے، حضور سے دور ہو جانا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ پھر دعا بھی کرتے تھے، کیا دعا کرنی، اللہ اگر یہ، اور وہ بات بھی یاد کرو جب انہوں نے کہی تھی کہ اگر خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ، یہ کئی کو بول رہی، یہ صحیح میں دعا نہیں ہے، یہ ایک چیلنج کر رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی 12 سال سے کر رہی نا، 13واں سال آ گیا نا، تب سے کر رہی، تب سے بول رہی عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اللہ کے تعلیمات پر آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت پر آ جاؤ، ہم نہیں کر رہے نا، ہم تو جھٹلا رہے نا، کھلم کھلا جھٹلا رہے نا، کیوں عذاب نہیں آیا، اب ایک دعا بھی کر رہے، یہ بھی ایک چیلنجنگ دعا، اللہ اگر صحیح ہے، یہ نبی صحیح ہیں اور تیری آیات انہوں سنا رہی اور ہمیں جھٹلا رہی، کھلم کھلا جھٹلا رہی، تجھے بھی معلوم ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو لے عذاب، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی عذاب میں مبتلا کر دے، اگر سچ ہے تو یہ بات وہ ایک چیلنج کے طور پر کہا کرتے تھے، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہمیں مٹا دے، ہمیں ختم کر دے، اگر سچ ہے یہ تو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، عذاب کیوں نہیں لاتا اللہ، اللہ بیان کر رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ انہیں عذاب دے دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ جبکہ اے نبی آپ ان کے درمیان نہیں، اللہ رسول کے ہوتے ہوئے عذاب ان پر نہیں لے آتا، اور یہاں کا معاملہ الگ ہے، یہاں کیا ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں وہ جہاں بھی ہے وہاں کوئی خطرے کا کام نہیں ہونا، وہاں کے جانور کو بھی ستانا نہیں ہے، وہاں کی کوئی مٹی بھی خراب کرنا نہیں ہے، وہاں کی کوئی فصل بھی تباہ نہیں کرنا ہے، کوئی چیز بھی، کوئی جھاڑ بھی، کوئی کانٹا بھی اگر ہو وہاں سے اکھڑنا نہیں ہے، تو یہاں نہیں عذاب لایا اللہ، یہ ایک استثنائی کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت لایا، کب لایا، وہاں سے چلا کر لے آیا بدر کو، بدر میں آئے، بدر میں آ کو 70 قتل ہوئے، بڑے بڑے سرداران قتل ہوئے، پھر 70 قیدی بنے، پھر مال لوٹا ان کا، ایک انسٹالمنٹ آف عذاب تو بدر میں مل گیا، اس کے بعد فتح مکہ ہوا، فتح مکہ میں بھی بہت کم خوریزی کے ساتھ فتح ہی ہو گیا، تو اسلامی تاریخ میں مکے میں خون بہان نہیں ہوا، وہ ایک 1989 میں یا کچھ وہاں کچھ ہوا تھا، وہ ایک آپ یہ ڈالے تو گوگل میں بھی سرچ کرے تو معلوم ہوتا ہے، وہ کوئی دھوکہ دینے آئے تھے، ان کے ساتھ ایک ہوا تھا کچھ معاملہ، اس کے علاوہ کبھی بھی دور جہالت کے وقت بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جو مکے میں امن کو خطرے میں ڈالے، تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نہیں اللہ ایسا عذاب لانے والا، ان کو عذاب دینے والا جبکہ آپ ان کے درمیان ہیں، آپ کو ہٹا لیں گے، آپ کے ساتھیوں کو ہٹا لیں گے تب ان پر عذاب آئے گا، اور وہ بھی مکے میں نہیں، دوسری جگہ میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ
यस्तगफिरून। अब यहाँ इनमें एक गडमट का मिला जुला मामला है, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, थोड़े वहदानियत परस्त भी हैं, कुफ्र पर नहीं है, पूरे कुफ्र पर नहीं है, पूरे शिर्क पर नहीं है, अब इनमें मिले जुले आदमी है। अब अजाब आया तो क्या होता है, गेहूं के साथ घुन पिस जाने वाला मामला होता है। तो यहाँ कह रहा है अल्लाह, उस वक्त अल्लाह इन पर अजाब नाजिल करने वाला ना था जबकि आप उनके दरमियान मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। और ना अल्लाह का ये फायदा है कि लोग इस्तगफार कर रहे हों और उनको अजाब में मुब्तला कर ले। वो भी जाते थे, नमाजें पढ़ते थे, उनका तरीका अलग था, चुटकियां बजाते, थालियां पीटते, लेकिन सबका ऐसा नहीं था। कोई अच्छे इबादत गुजार भी थे। वो उमर खत्ताब के, हजरत उमर खत्ताब के बहनवी के कौन है, किसके मुताल्लिक कहा जाता है, सईद के बाप, हाँ बहनवी के बाप, उनके बहनवी के बाप के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो 100% मुवहिद थे, वहदत परस्त थे। जहां जाकर खिलाफ पकड़ कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी बैसत नहीं हुई थी, इस्लाम नहीं आया था, तब वो वहदत परस्त थे। और जहां जाकर काबतुल्लाह का खिलाफ पकड़ कर कहते कि अल्लाह, मैं ये जो समाजी ये तरीके हैं, ये जो कुफ्र कर रही, शिर्क कर रही, इससे मैं बहुत बेजार हूँ, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ, खालिसतन तेरी इबादत करना, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरीके से करूं, क्या तरीक़ेकार है, तुझे इबादत कैसी पसंद है, मुझे नहीं मालूम है। ये ऐसा कहकर वो फरियाद किया करते थे। ऐसे भी थे। तो इन लोगों के होते हुए इस्तगफार करने वाले और अल्लाह की वहदानियत का दम भरने वाले इनके दरमियान हैं, ऐसे भी हैं, शिर्क भी करने वाले हैं, कुफ्र भी करने वाले हैं। तो ये जो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, अब इसमें अजाब नहीं लाने वाला। और ना अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तगफार कर रही, अल्लाह को याद कर रही, कोई वहदत परस्त भी है तो उनको अजाब में मुब्तला कर दे। ओह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व व बरकातुहू। बरकातुहू।